number 4, V is set of all real numbers. I have taken vector u that is x, vector v that is y, and for third axiom associative law, vector z you can choose it z. So for first axiom you will write u plus v that is equal to x plus y. X is real number, y is real number, their sum will be also real number, so that will lie in v. This for second and third axiom, these are addition for the zero vector. If u is 0, 0 is also a real number. U is x and zero vector you will choose 0. So u plus 0 will be x plus 0 and that is equals to x. Then if u is x, its negative u will be minus x, and then you can solve it. You can try it at your own. Sixth question. Set of all pairs of real numbers x, y. Again, pairs are in V, but the condition is that x greater than equal to 0, that the first component will be 0 or positive number. So u and v are chosen. I have written solve 1 up to 5, but when you move to fifth axiom says that u is given and minus u will be minus x and minus y. Do you think that this vector lies in V? No. Why? Because it's mentioned that all pairs lie in V, but only those pairs will lie in V in which the first component is either 0 or the positive number. But here it's negative number, so minus u, this vector does not lie in V, so fifth axiom also fails because minus u does not lie in V. Then sixth axiom, ku is equal to kx into y. Remember for this axiom, because this will be helpful when we move to the topic of subspace. Now here we have to consider all possibilities for k. K could be 0, could be positive integer, could be any positive number, and k could be any negative number. So if k is negative number, it will make this x negative number, and if this is negative, then this will not be in vector b. दोबारा से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि माइनस यू जो है वो बनेगा माइनस एक्स और माइनस वाई, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स किस तरह का होगा जिसमें एक्स यहाँ तो ज़ीरो होगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन माइनस यू में ये वाला जो माइनस एक्स है ये तो नेगेटिव आ गया, इसलिए माइनस यू जो है वी सेट के अंदर नहीं होगा। इसी तरह के अगर नेगेटिव होगा तो वो इस एक्स को नेगेटिव बना देगा, और नेगेटिव एक्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि एक्स यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा। इसलिए स्केलर वाले सारे एक्सियम्स जो हैं वो भी इस क्वेश्चन के लिए फेल हो जाएंगे, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों के पास फिर कंडीशन है, सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो सेकंड कंपोनेंट होगा उस पेयर का दैट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। तो जितने भी हम वेक्टर्स चूज करेंगे वो होंगे पेयर्स, लेकिन उनका सेकंड कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखें u क्या है, x और ज़ीरो है, मैंने v क्या ले लिया, y और ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिया है? क्योंकि डिफाइंड है कि दूसरा कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो ही होगा, डिफाइंड ये है, सेकंड कंपोनेंट ज़ीरो ही होगा, इसलिए इसके जितने भी एक्सियम होंगे उनमें सेकंड कंपोनेंट ज़ीरो ही आएगा। अब जब आपने इसका सम किया, उसने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन डिफाइंड है, स्टैंडर्ड एडिशन है और स्टैंडर्ड ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। x will be added in y, 0 will be added in 0. Now we are getting a pair, and pair is in the form that the second component is 0. So all those vectors in which second component is 0 lies in vector v. So this also lie in vector v, set v. So this is a first axiom is true. Second and third is for u. Fourth axiom, u is x0 and its 0 will be
again a ordered pair, but the second component will be 0. First component could be any number. If it could be any number, then it will be 0. Now the addition x plus 0 and 0 plus 0, x plus 0 equals to x and 0, and we are getting 0. Now u is x0 minus u will be additive inverse of this, that is minus x, and the second component as it is defined, that will be 0. So in inverse this component will be 0, then addition is same and we are getting the 0 vector. Sixth axiom, k into u, k ने जब x से मल्टीप्लाई होना है के एक्स बन गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0. दोबारा ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर फिर उसी तरह के पहला कुछ भी हो सकता है लेकिन दूसरा 0 ही होगा. नाउ द सेवंथ एक्सियम, u प्लस वी, u हमें पता है 0 वाला ही है, v भी वो है जिसका दूसरा कंपोनेंट 0 है, u प्लस वी हमने सॉल्व किया हुआ है जिसका ये आंसर था. k ने जब मल्टीप्लाई होना है पहले के साथ, दूसरे में 0, फिर दूसरा कंपोनेंट इसमें भी 0 ही आपके पास आ रहा है. राइट हैंड साइड में k u के साथ मल्टीप्लाई हो गया, k v के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और बाद में इनका सम हमने किया तो के एक्स के वाई में ऐड हुआ 0 0 में, तो ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड इसमें भी इक्वल आ गई. एट्थ एक्सियम में k प्लस एल विल मल्टीप्लाइड बाई यू, के प्लस एल एक्स, और 0 इसी तरह आ गया. फिर जब आप इसको के यू और एल यू देख रहे हैं तो वो भी इसी तरह लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है. नाइन्थ एक्सियम में पहले आप एल यू करेंगे, एल और ये यू वेक्टर है जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो एल एक्स इंटू 0 आ गया. फिर आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर के एल एक्स हो गया, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0. इसी तरह राइट हैंड साइड तो ये भी दोनों साइड इक्वल आ. जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 आ गया, एक्स आ गया, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 जो है वो आपके पास 0 आ गया, तो ये भी आपके पास वेक्टर यू ही के इक्वल आ गया. इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, डायगोनल में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जबकि इसकी जो सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल में बताया जा रहा है दैट सेकेंडरी डायगोनल विल ऑलवेज कंटेन 0. जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में था कि सेकंड कंपोनेंट जो था वो 0 था, इसमें सेकेंडरी डायगोनल जो है वो हमेशा 0 होगी, और एडिशन और स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड है. यू हमने उसमें इस डायगोनल में ए बी था वही ले लिया, इसमें मैंने सी डी ले लिया. जब इसकी एडिशन की तो वो स्टैंडर्ड है, उसी तरह ए सी में ऐड हो गया, बी डी में, 0 0 में तो वो 0. अब जो इसका आंसर आ रहा है उसको आप देख रहे हैं कि उसकी भी सेकेंडरी डायगोनल 0 है. बाकी आप एक्सियम्स खुद ट्राई कीजिएगा. जो इसका सिक्स्थ एक्सियम है, के ने जब मल्टीप्लाई होना है यू के साथ, स्टैंडर्ड है, के 0 और यहाँ पे के बी है, बाय मिस्टेकन यहाँ पे के मिस हो गया हुआ है. ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि ये के है. उसके बाद हमारे पास जो सेवंथ एक्सियम है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखें स्टैंडर्ड है, राइट हैंड साइड स्टैंडर्ड है, और ये बाकी के आप एक्सियम्स 10 तक जो है खुद से ट्राई कीजिएगा. मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें मुश्किल आएगी. क्यों इसमें हमने सेकेंडरी डायगोनल हर जगह पे 0 चूज़ किया, क्योंकि डिफाइंड था कि हमने वो वेक्टर्स लेने हैं जिनकी सेकेंडरी डायगोनल जो है वो 0 है. इसलिए जब आप इसके यू वी डब्ल्यू भी चूज़ करें, अगर डब्ल्यू आप यहाँ पे कोई नंबर रखते हैं ई और एफ, तो यहाँ पे फिर 0 और 0 ही रखेंगे. जब आप यू का 0 वेक्टर चूज़ करना चाहोगे तो क्योंकि ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर कुछ भी हो सकते हैं तो यू 0 वेक्टर क्या होगा मैट्रिक्स में, 0 0, और ये डायगोनल तो ऑलरेडी 0 ही रहनी है. जब आप इसका नेगेटिव यू चूज़ करोगे तो वो ये बन जाएगा माइनस ए, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, और ये माइनस बी. तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा.